Warm greetings to all students of Kids Planet School. Dear students, we are all well aware of the ongoing coronavirus pandemic and the series of lockdown declared by the government to keep us well protected. The lockdown has resulted in the shutdown of all educational institutions, and hence, the management of Kids Planet School has decided to bring about a series of online lectures for various subjects on its YouTube channel to help with the academic progress of its students. I, Sheikh Tawfiq, will be a virtual teacher for political science subject, and let us now begin with our first lesson, post-World War political developments. In the civics textbook, till now we have studied local self-government, institutions, India's constitution, and our political system of government structures. In this class, we are going to study India's relation with the world. You must have understood world geography through the study of geography. You must have become familiar with the global historical events through the study of history. Now, through the study of political science, we are going to study India's relation with the world and some major global issues. अभी तक हमने पढ़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिसने हिस्ट्री में बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस लेके आए। इस साल हम पढ़ेंगे उस ऐसे कुछ इंडिया के रिलेशन के बारे में कि इंडिया का जो रिलेशन है वो वर्ल्ड के साथ, दूसरे कंट्री के साथ, वो कैसा है और उस चेंजेस की वजह से इंडिया के इकनॉमी पे क्या क्या फ़र्क पड़ा है, ऐसे कौन से बड़े बड़े इश्यूज़ है जिसे हमने टैकल किया है वर्ल्ड इकनॉमी के थ्रू। We are dependent on different persons, institutions, and organizations in the society for different reasons and for different facilities. Our social life is interdependent and mutual cooperation has a very important place in it. जैसे कि हम खुद एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं सारी चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि सोसाइटी में भी हमें आस पड़ोस वाले लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, सेम वैसे ही कॉपरेशन हमें चाहिए होता है स्टेट और नेशनल लेवल पे भी। Just as it is true for individuals and society, it applies to different nations as well. There are many interdependent nations in the world like India. Some exchange and interaction goes on between them constantly. These independent states also enter into treaties with each other. A system of all these independent sovereign states comes up. We call it international system. ऐसा जो सिस्टम है, सो इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर होना अपने सारी ज़रूरतों के लिए या फ़ायदे के लिए। तो जैसे इंडिया एक सोवर्जिन स्टेट है, एक आज़ाद नेशन है, वैसे ही वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस हैं। तो सब नेशंस के पास हर एक रिसोर्सेस हो ये ज़रूरी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सारे नेशंस एक दूसरे की हेल्प करते हैं ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। Let us get to know some features of this international system. इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। First of this is interdependence. All the countries of the world are dependent on each other, as I said, for one reason or another. However big, prosperous or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. Even big nations have to depend upon other big and small nations. Thus, interdependence is an important feature of the international system, that is, today's global system. राज्य कितना भी बड़ा या प्रॉस्परस क्यों ना हो, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कोई भी नेशन भले वो कितना रिच क्यों ना हो या उसके पास कितने ही नेचुरल रिसोर्सेज क्यों ना हो, बट उसको किसी ना किसी छोटे नेशंस की या बड़े नेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही कभी ना कभी। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। What is the difference between the interdependence between individuals and that between nations? The answer to this is, interdependence is the mutual reliance between two or more groups of individuals, whereas one country depends on other country for something and that country may depend on other country, which eventually creates global interdependence. Importing and exporting of goods and services highly contributes to global interdependence. इसमें ये बताया गया है कि जब दो इंडिविजुअल के बीच में इंटरडिपेंडेंस होता है, यानी दो
पर्सन के बीच में जब इंटरडिपेंडेंस होता है वो एक छोटा सर्कल होता है, ठीक है। मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें है वो मैंने लिया, बदले में उसको कोई चीज़ दे दिया, ठीक है। द चेन फिनिशेज हियर ओनली। बट कंट्री के बीच का जो इंटरडिपेंडेंस होता है, नेशन के बीच का, वो बहुत बड़ा होता है। उससे क्या होता है, एक बड़ा सा ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस चालू हो जाता है, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे से लेन देन में व्यस्त रहती है। तो उससे एक पूरा सर्कल, एक पूरा चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। तो इंडिविजुअल के बीच का जो रिएक्शन डिपेंडेंस है वो छोटा होता है, और नेशन के बीच का जो है वो बड़ा होता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज देयर सच अ डिविजन लाइक रिच कंट्री एंड पुअर कंट्री? And the answer to the second one is no. There is no such division like rich countries and poor countries on world level. हमें ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीज ज़्यादा डेवलप है, कुछ डेवलप नहीं है, कुछ रिच होगी, कुछ पुअर है। बट अगर ग्लोबल लेवल पे देखें, वर्ल्ड की नज़र में कोई भी कंट्रीज को ऐसा बांटा नहीं किया है रिच एंड पुअर टाइप्स में। द थर्ड क्वेश्चन इज, जस्ट एज अ कंट्री इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इज देयर सम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट द ग्लोबल लेवल? एंड द आंसर टू दिस इज yes. There is such kind of constitution at the global level also. Let us move to the next topic, international relations through foreign policy. Every nation has policies about its international dealings, as also about its relation with other nations. Such a policy is called foreign policy. जब हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि हमें जो जिस हिसाब से ट्रेड करना है, क्या हिसाब से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए कोई एक बनाया जाता है रूल्स एंड ऑल, उसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज़ बीन शेप्ड थ्रू मैनी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। हैंस वी नीड टू गो बैक टू हिस्ट्री in order to understand today's world. We know that 2 world wars have been fought in the last century. These were the most important events in the world in that century. The world completely changed because of them. हिस्ट्री में जो भी चेंजेस आया है वो उसके पुराने इवेंट्स की वजह से आया है, कि भूतकाल में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे उसने शेप करने में बहुत उसको मतलब उसने हमारे वर्ल्ड को शेप किया है बहुत सारी चीज़ों के लेके। तो पोस्ट हिस्ट्री में जो 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो थे वर्ल्ड वॉर। 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उन वर्ल्ड वॉर के बारे में जिसके से इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं वर्ल्ड में। The First World War was fought between 1914 and 1918. Major countries of the Europe took part in it. Europe had a very central place in the international or global system at that time. The war caused a tremendous loss of life and property. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और इस पूरे वॉर का जो मेन सेंटर था, जो मेन एरिया था, वो था यूरोप का। बिकॉज पहले का टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा डेवलप थे, और एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ ये सब उनके गुलाम थे। यानी यहाँ पे लोग कॉलोनीज बनाते थे फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। तो यूरोप में ये लड़ाई चालू हुई, और जो वॉर थी उस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, यानी पैसे का नुकसान तो हुआ ही, साथ में बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में मरे भी। द कंट्रीज विच जॉइंड द वॉर suffered tremendous loss, economic losses. Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economies of the victorious as well as the losing countries collapsed. इससे ये हुआ, इकोनॉमिक गिरने से ये प्रॉब्लम हुआ कि जो कंट्रीज जीते थे और जो कंट्रीज हारे थे, दोनों को भी बराबर का नुकसान हुआ। जैसे कि बोलते हैं ना कि वॉर में कोई भी विजेता नहीं होता है, दोनों ही पार्टी हारती है। भले एक कंट्री हमें ऐसा लगता है जीत गई है, बट फिजिकली तो उसको भी डैमेज हुआ है ना, पैसे का नुकसान तो वहाँ पे भी होता है। तो वॉर का कोई एक अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्योंकि इतना बड़ा वॉर था, उस मतलब वो पहली बार ऐसा था कि दुनिया ने इतनी बड़ी लड़ाई देखी थी, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 पार्ट में लिया गया था, मतलब 2 ग्रुप्स थे वहाँ पे, एलिट पावर्स और सेंट्रल पावर्स। एलिट पावर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका, और सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर जिसे हम टर्की भी बोलते हैं, और बुल्गारिया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर all the nations felt that such a war should not happen again, and some measures need to be taken to achieve that end.
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो पूरे दुनिया को ये लगा कि मतलब ये लड़ाई जो थी इससे फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट टाइम वापस ऐसी सिचुएशन ना आए और ऐसा वॉर वापस से देखने ना पड़े। An international organization called the League of Nations was established out of this thinking. It became an important platform to solve international disputes and carry out negotiation. तो इसीलिए हमने एक ग्रुप बनाया लीग ऑफ नेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ताकि ये लीग ऑफ नेशन जो है वो इस बात पे ध्यान रख सके कि वापस से फ्यूचर में ऐसी वॉर ना हो। बट लीग ऑफ नेशन फेल हो गई और 20 साल बाद हुआ वर्ल्ड वॉर 2। लीग ऑफ नेशन मतलब पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं वो चूक गया। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीग ऑफ नेशन वॉज अंडरस्टूड टू अवॉइड वॉर। उसका मेन काम था कि वॉर ना हो। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजर चेंजेस केम अबाउट इन द यूरोप एंड ईस्ट यूरोप। द मेन एम ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज टू डिस्करेज एग्रेशन। जो ऐसे कंट्रीज थे जो ज़्यादा एग्रेसिव थे, जर्मनी वगैरह जो कंट्रीज थे जो लोगों से मतलब से छीनना चाहते थे, दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज करके उनसे काम करवाना चाहते थे, तो लीग ऑफ नेशन का पहला काम ये था कि एग्रेशन को रुकाना है किसी भी तरीके से। टू एंकरेज डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब आर्म्स यानी हथियार, हथियार की जो रेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने की जो दौड़ चालू थी उसको कैसे भी करके कंट्रोल करना है, क्योंकि हथियार अगर नहीं होंगे तो जंग होने की संभावना कम है, या फिर अगर जंग हुई भी तो उससे जो डैमेज होगा वो कम रहेगा। टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमॉन्ग नेशंस स्पेशली इन ट्रेड एंड बिजनेस। जितना ज़्यादा हो सके अलग अलग नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना, क्योंकि अगर फ्रेंडली रिलेशन होगा तो लड़ाई की संभावना कम रहेगी, क्योंकि उनको डर रहेगा ना कि इससे हमारे ट्रेड पे या बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो लोग लड़ेंगे नहीं। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का जो उस टाइम पे था, ऐसा था कि जो अमीर कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत अच्छे हालात है, बट गरीब कंट्रीज़ हैं जो स्लेव नेशन है जैसे कि अफ्रीका और इंडिया के जो कॉलोनीज थे यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, तो उसको इम्प्रूव करना था। तो ये सारी जिम्मेदारी लीग ऑफ नेशन को दी गई थी। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजर चेंजेस came about in Europe and outside Europe. For example, earlier empires in Europe collapsed and new nations came into being. Many European countries had their colonies in the continents of Africa and Asia. Movements for interdependence started in these colonies. This movement challenged the hegemony of the European nations. हेगेमनी मतलब ताकत। पहले का जो पूरा ताकत था वो यूरोपियन नेशंस में था, मतलब यूरोपियन नेशन ही पूरे वर्ल्ड को चलाते थे या उसको रूल करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही यूरोपीय की जितने भी नेशंस थे सब ने इकोनॉमिक लॉसेस सफ़र किया, तो उनकी जो ताकत थी वो कम हो गई। तो वो लोग अपने गुलाम नेशंस जो थे, ऐसे कंट्री से जहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनी सेट किया था, उनको अपने ताकत में नहीं रख पाए। उससे उससे क्या हो गया कि जो छोटे मोटे कंट्रीज थे वो लोग बगावत पे उतर आए और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस छीन लिया। इंडिया भी उसी में से एक कंट्री है। लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू एस्टैब्लिश पीस, बट इट डिड नॉट सक्सीड एट प्रिवेंटिंग वॉर। ऑटोक्रेटिस रिजीम केम अप इन द जर्मनी। ऑटोक्रेटिक मतलब डिक्टेटरशिप। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिक्टेटरशिप आ गया। उसमें से कई मेन कंट्रीज थे जर्मनी, इटली और स्पेन। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जहाँ पे डिक्टेटरशिप चालू हुआ। द कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, स्पेन एंड अदर कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज में डिक्टेटरशिप चालू हो गया था तब तक, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो नुकसान था उसको गवर्नमेंट ने संभाल नहीं पाया। गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना था वो लोग उसमें असफल हो गए, तो लोगों ने बगावत कर दिया। तो उसमें से कुछ ऐसे लीडर्स थे जो लोग खड़े हो गए, जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने कहा कि मैं अपने यहाँ के हालात पूरे सुधार दूंगा, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, जैसा हमें मतलब वॉर का पूरा नुकसान जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया था ना, पूरा एग्जाम जर्मनी पे आ गया था, तो हिटलर ने बोला मैं जर्मनी की कंडीशन को सुधारूंगा। तो लोगों ने वो चीज़ पसंद किया और उसको वहाँ का डिक्टेटर बना दिया। सेम वैसे ही हुआ मुसोलिनी के साथ, मुसोलिनी को इटली का डिक्टेटर बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जहाँ पे डिक्टेटरशिप चालू हो गया ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1939 and 1945. It proved to be far more destructive than the First World War. Not only was it more widespread compared to the First World War, but also more advanced technology was used in this war. Countries which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो सेम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह था, बट उससे भी ज़्यादा खतरनाक। रीज़न ये था क्योंकि इस टाइम तक बहुत से कंट्रीज़ ने आर्म्स रेस डेवलप कर दिया था, ऐसे ऐसे नए टेक्नोलॉजी और वेपन्स तैयार किए थे जो ज़्यादा घातक थे। इसके अलावा जो कंट्रीज़ ने वापस से इस वॉर में हिस्सा लिया तो सेम सिचुएशन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड की तरह उन्हें पॉवर्टी का सामना करना पड़ा और उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। The countries involved in the Second World War were as follows. It was again classified into two teams. First one was elite powers and the second one was Axis power. In elite powers, there were Britain, France, Australia, Canada, New Zealand, India, Soviet Union. There was no Russia at that time. रशिया बाद में आया, पहले उस पूरे रीजन को सोवियत यूनियन बोला जाता था, और जब सोवियत यूनियन टूट गया और बिखर गया तो उसमें से अलग अलग कंट्रीज बने जिसमें से एक रशिया है। Soviet Union, China, America. And on the Axis power, there were Germany, Japan, and Italy. America played a major role in the Second World War. It had manufactured nuclear weapons. अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया था, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, और उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड किया। हिरोशिमा पे बॉम्बिंग हुआ था 6 अगस्त को एंड नागासाकी ऑन 9 अगस्त 1945। इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and of Japan in Asia. Among the many events that took place in the world after the Second World War was beginning of the Cold War. 1945 to 1991 is a long period of the Cold War. Second World War जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आए, जैसे कि छोटे मोटे कंट्रीज़ को फ्रीडम मिलना चालू हो गया, जो कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म का जो ज़माना चल रहा था स्लेव्स वगैरह का वो पूरा ख़त्म हो गया, और वर्ल्ड इकोनॉमी चालू हो गया, ट्रेड चालू हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। बट एक बहुत बड़ा चेंजेस उसमें से था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर होता है मतलब जहाँ पे एक्चुअली में हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे, बट सिचुएशन कुछ ऐसे है कि ऐसा लगता है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। Let's find out. The Second World War was fought between 1939 to 1945. What events were unfolding in India during this period? The answer to this is the declaration of Indian independence and partition of India into India and Pakistan, the internal squabble of the Congress organization conflict between Subhash Chandra Bose and Gandhi, extreme communalism hardened the Muslim League, etc. These were the changes which took place during that period 1945 के समय, जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अपने ख़त्म होने के टाइम पे था, तब इंडिया में ये चेंजेस हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने लगा था और इंडिया और पाकिस्तान ऐसा करके दो नए रीजन बन गए थे। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया उस टाइम पे। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया? This period brought to light primarily the fragile nature of the mosaic of Indian society. इंडियन सोसाइटी पहले से ही भटका हुआ था। उसमें ऑलरेडी दो पार्ट थे, एक तो अपर क्लास जो कि बहुत अमीर थे, लैंडलॉर्ड्स या ज़मींदार जिसको बोला जाता है, और लोअर क्लास जो कि फार्मर्स थे उस टाइम के, जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जैसे हमने पुरानी पिक्चरों में देखा है। ठीक है, तो इसके बीच में जो गैप थे वो बढ़ने लग गए। एज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल बिकेम एक्सट्रीमली वर्स ड्यू टू द सोरिंग ऑफ प्राइजेस ऑफ नेसेसिटीज़ इन एडिशन टू द डेविस्टेटिंग फेमाइंस। जो कंडीशन था उस टाइम के गरीब लोगों का वो और ज़्यादा बद से बदतर होने लग गया। क्यों? क्योंकि वॉर की वजह से इकोनॉमी पे और प्रोडक्शन पे बहुत गहरा सदमा पड़ा था। तो जब नई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होगी तो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उसका दाम बढ़ जाएगा, जैसे कि हम इस लॉकडाउन में देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन या प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो नेसेसिटीज़ है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में गरीब लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर से उस टाइम पे बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, फेमाइन यानी बारिश नहीं होना, जिससे पूरी खेतीबाड़ी का नुकसान हो चुका था। America and the Soviet Union, who were allies in the Second World War, became competitors as soon as the war got over. अमेरिका और सोवियत यूनियन जो कि एक टीम में थे, साथ साथ में थे, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए कोल्ड वॉर के समय। The cooperation between them gave way to rivalry. This rivalry occupied a period of 40 to 45 years of the international politics. There was no open war between these two countries,
बट देयर वाज सच टेंशन इन द रिलेशन दैट इट सीम्ड दैट अ वॉर कुड इरप्ट एनी टाइम। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कोल्ड वॉर मतलब एक्चुअल वॉर नहीं होता है, ऐसा सिचुएशन होता है, यानी दोनों के बीच की दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि हमें लगता है कि दोनों कभी भी लड़ाई कर सकते हैं, बट एक्चुअली में लड़ाई हुई नहीं थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दोनों साथ में थे, एक टीम में थे। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो जैसे कि हमने जाना है कि अमेरिका उस टाइम पे सुपर पावर बन चुका था क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो गए थे। बट सोवियत यूनियन की हालत भी कुछ अच्छी थी, उसका इकोनॉमी इतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ था, तो उसने भी न्यूक्लियर पावर बनाना चालू किया। तो अमेरिका को क्या लगा कि मतलब ये मुझे चैलेंज कर रहा है, तो अमेरिका ने टेक्नोलॉजी और डेवलप किया और नए नए हथियार बनाना चालू किया। सोवियत यूनियन का लगा कि मतलब मैं भी पीछे क्यों रहूँ, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग चीज़ों का अपना प्रदर्शन करते थे, नए नए वेपन्स और हथियार बनाते थे। तो इससे क्या हो गया, बाकी के कंट्रीज़ को डर लगने लग गया कि अगर ये लोग अपना मतलब दबाव दिखाने के लिए आपस में लड़ लिए या आपस में लड़ने लगे, तो उससे नुकसान तो हमारा होगा, क्योंकि बाकी सब तो छोटे कंट्रीज़ है ना, वो लोग उसके सामने टिक नहीं पाएगी और एक और वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। इस चीज़ का टेंशन उन लोग को था। तो ये जो कोल्ड वॉर का पीरियड था ना, वो ऐसा नहीं कि बहुत छोटे टाइम के लिए और चला गया, ये कम से कम 40 to 45 ईयर्स तक चलता रहा। और बाकी सारे नेशंस हमेशा इस डर में थे कि लड़ाई कभी भी हो सकती है। In this period, America was already a superpower, but the Soviet Union also tried to become superpower by making nuclear weapons and by increasing its military. The struggle for power, arms race, differences in ideologies, attitude, all these were the reason for कोल्ड वॉर। सोवियत यूनियन और अमेरिका, इन दोनों का ही सोचने का नज़रिया दोनों एकदम डिफरेंस था एक दूसरे से। अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, अमेरिका का ये आइडियोलॉजी था कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बनाना है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। बट हाँ, स्टालिन स्टालिन जो था वहाँ का लीडर रशिया का, सोवियत यूनियन का, उसका मतलब मन में ये था कि सोशलिज्म को बढ़ावा देना है। सोशलिज्म मतलब सोसाइटी के बारे में ज़्यादा ध्यान देना, ना कि अपने फ़ायदे के बारे में। और अमेरिका का थिंकिंग इससे एकदम अपोजिट था, अमेरिका सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता था स्टार्ट से ही। तो दोनों की आइडियोलॉजी एकदम अलग थी और दोनों ही अपनी आइडियोलॉजी दूसरे नेशंस पे थोपना चाहते थे। रशिया को लगता था कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे बाकी सब भी सोचना चाहिए, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट अमेरिका का भी था। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होने चालू हो गई और दोनों एक दूसरे को अलग अलग स्ट्रैटेजी और काउंटर स्ट्रैटेजी से नीचा दिखाने लगे। The next thing which happened was, now let's take your opinion. What is your opinion in this? Is there any correlation between the advances in technology and world peace? यानी जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जो दुनिया में पीस हम लोग बनाना चाहते हैं, उन दोनों में मतलब कोई लेना देना है या नहीं? तो है। टेक्नोलॉजी को अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा देगी, और वैसे अगर हम उसको गलत चीज़ों के जैसे वॉर के लिए यूज़ करेंगे तो उसके इफेक्ट्स भी बहुत घातक हो गए, जैसे कि हमने एटॉमिक पावर में देखा था। हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर? टेक्नोलॉजी को हम लोग को पता है अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करना है, बट हम लोग करें कैसे वो? तो उसका आंसर यहाँ दिया है। टेक्नोलॉजी कैन बी व्यूड एज एन एक्टिविटी दैट फॉर्म्स और चेंजेस कल्चर। Additional technology is the application of math, science and arts for the benefit of life as it is known. टेक्नोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या? मैथ, साइंस और आर्ट्स को यूज़ करके एक ऐसा तरीका बनाना जिससे नॉर्मल लोगों की डे टू डे लाइफ को सुधारा जा सके, उनका जो कष्ट है या जो भी काम है उसको किस तरीके से हम लोग घटा सके, ईजी कर सके। दैट इज योर टेक्नोलॉजी। A modern example is the rise of communication technology, which has loosened barriers to human interaction and as a result has helped spawn new subcultures. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले हमें बात करने के लिए, किसी को मैसेज भेजने के लिए एक इंसान को वहाँ पे भेजना पड़ता था। लिटरली वो आदमी 3 से 4 हफ्ते तक ट्रैवल करता था और तब जाके मैसेज देता था, उतना ही टाइम लगता था रिप्लाई आने में। बट टेली कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग एक सेकेंड में तुरंत उनसे बात कर सकते हैं ईमेल पे, इंटरनेट के थ्रू। तो जो पूरा गैप था इतने टाइम का वो कट शॉर्ट हो चुका है। In a creative way, technology can also help facilitate modern operation and war via tools such as guns. As a cultural activity, technology predates both science and engineering, each of which formalizes some aspects of technological endeavor. तो टेक्नोलॉजी में यही बताया है कि हम लोग उसको अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ख़राब चीज़ों के लिए भी। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, अच्छे वे में या ख़राब वे में। तो कोल्ड वॉर अभी ख़त्म होने वाला है, बट इस कोल्ड वॉर की वजह से क्या क्या बड़े बड़े
चेंजेस है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला चेंज तो ये था कि कोल्ड वॉर के से अलग दोनों ही राज्यों ने, अमेरिका और सोवियत यूनियन, दोनों ने अपने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाना चालू किए। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर्स क्रिएटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। द रिस्पेक्टिव पावर्स टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज जॉइनिंग द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय देम। तो इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि वो अपने अपने कंट्रीज को सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ाते रहे। NATO, North Atlantic Treaty Organization, was a military organization under the dominance of America, while the Warsaw Pact was a military organization under the command of Soviet Union. जो नेटो ऑर्गेनाइजेशन था वो अमेरिका का था, यानी अमेरिका को डिफेंस करना या उसके दुश्मनों से उसकी रक्षा करना, उसका काम नेटो का था। सेम वैसे ही वॉर्सो पैक्ट जो था वो सोवियत यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन था और उसका भी सेम काम था कि दुश्मनों से उनकी रक्षा करना। वो लोग बोलते डिफेंस है सिर्फ, बट एक्चुअली में उनका मतलब होता है कि अपनी पावर दिखाना। ये रियल मोटिव होता है पैक्ट बनाने का। तो इसके लिए वो लोग अपने आर्मी को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे ताकि दूसरे कंट्रीज उनसे डरे और उनकी तरफ ज्वाइन हो जाए। नेक्स्ट इफेक्ट वॉज बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड ईदर ऑफ द टू सुपर पावर ब्लॉक्स। जैसे कि मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर के समय दोनों ही, सोवियत यूनियन और अमेरिका, दोनों ही चाहते थे कि बाकी कंट्रीज उनको ज्वाइन करें जिससे उनका पावर और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए लोग हर कंट्री को अपने साइड में लेने की सोच रहे थे। सच अ डिवीजन ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टू ग्रुप इज कॉल्ड बाइपोलराइजेशन। इसी सिचुएशन को हम लोग बाइपोलराइजेशन बोलते हैं। यानी जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जो है वो दो पार्ट में, दो टीम में बढ़ गई थी। जैसे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। अब जो कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग ने अमेरिका का साइड लिया, जो कंट्रीज सोवियत यूनियन के सपोर्ट में थे, सोशलिज्म के सपोर्ट में थे, वो लोग ने सोवियत यूनियन को जाके ज्वाइन कर लिया। तो इससे क्या हो गया, कोल्ड वॉर का जो स्कोप है यानी उसका जो दायरा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अभी कोल्ड वॉर सिर्फ दो कंट्रीज़ के बारे में नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के बारे में है। तो इससे टेंशन और बढ़ने लग गई बहुत सारे कंट्रीज़ को, और इससे जो छोटे कंट्रीज़ थे उन लोग को और डर लगने लग गया कि भी वापस से ये जो चीज़ें हैं वो वापस से दिखा दी कि शायद एक और वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इस तरफ पॉइंट कर रही है वो। द थर्ड वन वॉज आर्म्स रेस। आर्म्स जैसे कि हथियार हम जानते हैं। द सुपर पावर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आर्म्स ऑन अ लार्ज स्केल to outsmart each other. They started a rivalry to make more and more destructive weapons and to acquire the technology required for the same. दोनों ही चाहते थे कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाना है, जिससे क्या होगा दूसरे टीम को हार मानने पे मजबूर किया जा सके। तो दोनों ही कंट्रीज़ का फंडा एकदम सिंपल था कि जितना टेक्नोलॉजी हो सके, जितना भी टाइम है टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उन्होंने अपनी टीम को लगा दिया था नए नए हथियार बनाने के लिए। बट सून बोथ द सुपर पावर रियलाइज्ड दैट द आर्म्स रेस में एंडेंजर इंटरनेशनल पीस। हेंस एफर्ट्स टुवर्ड्स आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट ऑल्सो हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दोनों कंट्रीज़ को यानी दोनों फोर्सेस को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग आर्म्स बना रहे हैं, बट अगर जंग की नौबत आती है या फिर अगर लड़ाई होती है तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, वर्ल्ड वॉर जैसा इफेक्ट नहीं होगा, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर के बाद भी एटलीस्ट मतलब इतना टाइम तो था कि हम लोग एक दूसरे को संभाल सकें। प्लस उन लोग ने देखा था कि कितना नुकसान होता है वॉर में, तो इसलिए लोग चाहते थे कि मतलब ये जो जंग है हथियार बनाने के नए नए, इसको रोक दिया जाए। इसी को बोलते हैं डिसआर्मामेंट। तो इस टाइम में दोनों ही समझदार बन गए और वो लोग ने एक पैक्ट बनाया कि हम लोग नहीं करेंगे आर्म्स का प्रोडक्शन। द नेक्स्ट इफेक्ट वॉज क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। नए नए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनने चालू हुए। इससे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने टीम की पावर देखा। लोगों को जब पता चला कि अगर हम लोग एक साथ रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तो हमारी पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो छोटे छोटे कंट्रीज़ ने भी यही किया। उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग खुद आपस में मिल के अपना एक टीम बनाना, ग्रुप बनाना स्टार्ट करें, तो जो बड़े कंट्रीज़ है वो हम लोग को मतलब डरा नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अलग अलग बने, और यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में भी सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एक्सेट्रा एस्टैब्लिश्ड एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका नाम था एशियन, ASEAN। तो ऐसे करके अलग अलग बहुत सारे छोटे मोटे कंट्रीज, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बने। एशियन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था। जो नेक्स्ट इफेक्ट है कोल्ड वॉर का वो है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट में क्या होता है, कुछ ऐसे भी कंट्रीज थे जो कि दोनों ही पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। ना ही वो अमेरिका के साथ साइड होना चाहते थे, ना ही यूनाइटेड नेशंस के साथ, सॉरी सोवियत यूनियन के साथ।
तो इसलिए वो लोग ने क्या सोचा कि हम लोग लड़ाई से दूर ही रहेंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे। तो ऐसे कुछ कंट्रीज, उसमें से इंडिया भी एक था। उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग किसी भी एक कंट्री का साथ देते हैं तो अगर लड़ाई के बाद जो भी कंट्री हारेगी तो हमें उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, और फालतू में ऐसा हो जाएगा कि मतलब दूसरे के उन लोग के अमेरिका और सोवियत यूनियन के झगड़े की वजह से वो लोग को नुकसान देखना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग इस लड़ाई से दूर ही रहते हैं ताकि हमें उससे कुछ फ़र्क ना पड़े। दैट इज़ कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय नॉन अलाइनमेंट का जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जो नेक्स्ट सेंस था, non-aligned movement. The Asian and African countries, which became independent after the Second World War, supported the idea of non-alignment. ये कुछ ऐसे छोटे मोटे कंट्रीज थे जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था और वो लोग वापस से वॉर में नहीं जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट किया। This movement started from 1961 under the leadership of India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia Dr. Sukarno, and the last was President of Ghana Dr. Kwame Nkrumah। ये सारे लोगों ने मिलकर ये नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट दिया। तो इस नॉन अलाइंड मूवमेंट में स्टार्टिंग में तो 5 ही कंट्रीज थे, बट धीरे धीरे आगे और कंट्रीज ज्वाइन होने लग गए। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेन एस्पेक्ट ये था कि मतलब कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और रेसिज्म, इन सारी चीज़ों को अपोज करना। कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है, जब दूसरे कंट्रीज जैसे कि यूरोप के जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, बेल्जियम, जर्मनी, ये सब क्या करते थे, एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज पे आके कॉलोनीज बनाते थे, जिससे वो लोग अपने फैक्ट्रीज यहाँ पे सेट कर सकते थे और जो भी मजदूर थे वहाँ यहाँ की कंट्रीज को गुलाम बना के इन लोग से ही लेबर वाला वर्क करवाते थे। दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज करना। इम्पीरियलिज्म का मतलब भी लगभग यही होता है, दूसरे कंट्रीज को मतलब वहाँ जाके रूल करना और उनको उनकी आज़ादी छीन लेना। और रेसिज्म पहले बहुत चलता था उस टाइम पे, अफ्रीका के मतलब जो नेग्रोज थे, जो ब्लैक स्किन थी जिनकी, तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था कि मतलब वो लोग कोई पावर डिजर्व नहीं करते, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना ही मेन मुद्दा था नॉन अलाइन मूवमेंट का, कि कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, रेसिज्म, ये सारी चीज़ें जो अभी तक चलती आ रही है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। India led this movement under the guidance of Pandit Jawaharlal Nehru. India continued to actively support the movement afterward as well. इंडिया ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था नॉन अलाइनमेंट का और बाकी सारे कंट्रीज उससे जुड़ते गए, बट इंडिया ने मतलब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी इस चीज़ को छोड़ा नहीं और इस प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते रहा। Even after the end of the Cold War, the importance of the movement has not reduced. The non-aligned movement is based on internal principles of humanism, global peace and equality. इस मूवमेंट का जो मेन चीज़ें हैं वो है कि ह्यूमैनिज्म, इंसानियत की जो क्वालिटी है वो लेके आना बाकी सारे कंट्रीज़ में भी, ग्लोबल पीस मेंटेन करके रखना और सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी एक इक्वालिटी मिलना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये इसका मेन मकसद था। इट हैज़ इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर. It has encouraged the resolution of international dispute by peaceful means. While taking a firm stand on disarmament, fostering human rights, the non-aligned movement put forth the problems of poor, undeveloped countries firmly. नॉन अलाइन मूवमेंट का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको आगे लेके आना, उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनको दिलाना, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना। इसलिए उन्होंने एक नया मूवमेंट बनाया जिसका नाम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, शॉर्ट फॉर्म में न्यू। इस मूवमेंट के तहत मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग लोगों के जो भी पुअर कंट्रीज थे और जो अंडर डेवलप कंट्रीज थे उन लोग को पुश देते थे या उनको अप्रिशिएट करते थे आगे बढ़ने के लिए। Summarizing briefly, the significance of the non-aligned movement has not reduced even if the Cold War is over. It inspired the less underdeveloped countries to come together. It brought several new streams of economic and social changes in the international politics. It gave these countries the confidence to assert themselves with self-respect in international politics. तो नियो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वजह से बहुत से अंडर डेवलप कंट्री को ये कॉन्फिडेंस आया और ये मौका मिला कि वो लोग भी मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस गेन कर सकते हैं, या अगर ऐसे भी कुछ कंट्रीज थे जो अभी भी मतलब गुलाम थे तो वो लोग को इंडिपेंडेंस
दिलाने के लिए नियो और ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हेल्प किया। एंड कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन चल ही रहा था और अपना काम कर रहा था। The Cold War that had dominated international politics since 1945 came to an end. आखिरकार वो खत्म हो गया। It was an important event that happened towards the end of the last century. There were many reasons for the end of the Cold War, as given below. कोल्ड वॉर खत्म होने के तो बहुत सारे रीज़न थे, उसमें से सबसे पहला था सोवियत यूनियन adopted the policy of opening of the economy, the state loosened up its control। जैसे कि हम लोग जानते हैं सोवियत यूनियन जो था वो सोशलिज्म में बिलीव करता था और बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं मानना चाहता, उसको लगता था कि मतलब सोशलिज्म ही बेस्ट है। बट उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को खोलना चालू किया। खोलना मतलब दूसरे कंट्री से ट्रेड करना, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को यहाँ पे आने देना ट्रेड करने के लिए, मार्केट सेट करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, उसका जो होल्ड था इकोनॉमी पे वो छूटने लगा। लोगों ने पैसे कमाना चालू किया और लोगों को प्रॉफिट की आदत पड़ गई। तो धीरे धीरे मतलब लोग अमेरिका का आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, कैपिटलिज्म वाला, पैसों के पीछे भागने वाला। तो इससे क्या हो गया, सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी था वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी खुल गया और उसका रशिया का जितना दबदबा था वो चला गया। इसके अलावा सेकेंड चीज़ ये हुआ, उस टाइम का जो प्रेसिडेंट थे माइकल गॉर्बैक, सोवियत का जो प्रेसिडेंट थे माइकल गॉर्बैक सोवियत यूनियन का, उसने ये पॉलिसी स्टार्ट किया पेरेस्ट्रोइका और गैलनोस्ट। इसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग और ओपननेस का, यानी अपनी इकोनॉमी को वापस से स्टार्ट से बनाना चालू करना है और दूसरे कंट्रीज़ को भी यहाँ पे हिस्सा देना है, ओपन करना है अपनी इकोनॉमी को ट्रेड के लिए और वर्ल्ड के लिए, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन में होता है, सारे कंट्रीज़ एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं वैसा। ड्यू टू दिस पॉलिसीज़ द कंट्रोल ओवर मीडिया रिड्यूस्ड। इस पॉलिसीज़ का चेंजेस ये हुआ कि गॉर्बैक के इस पॉलिसी के से ऐसा हुआ कि उसका जो मीडिया पे कंट्रोल था वो धीरे धीरे जा रहा है। जैसे आज के टाइम में चाइना कैसा, चाइना का मीडिया का कंट्रोल है, चाइना में वही दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। तो वैसी चीज़ें वहाँ पे भी चल रही थी पहले, बट ट्रेड के ज़्यादा होने से और ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने की वजह से मीडिया मतलब अभी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और गवर्नमेंट का जो लीडर था उसके हाथ में इतनी पावर नहीं रही। तो इससे क्या हो गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी आना चालू हो गया। अब लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे मतलब हम लोग भी अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चला सकते हैं जैसे बाहर की दुनिया में चल रहा है। तो उन्होंने डेमोक्रेसी की तरफ जाना चालू किया। तीसरा इफेक्ट ये था, एज द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेटिक पाथ, द रीजन्स दैट चेंज। जो ऐसे कंट्रीज थे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, रशिया ने जब कोल्ड वॉर स्टार्ट किया था, सोवियत यूनियन ने, तो कुछ कंट्रीज थे जो सोवियत यूनियन का भी साथ दे रहे थे, है ना। तो अब क्योंकि सोवियत यूनियन की खुद की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, तो इससे क्या हो गया कि उन सारे देशों पर भी सेम प्रभाव पड़ा और उनकी गवर्नमेंट भी धीरे धीरे चेंज होने लग गई। और फोर्थ और द लास्ट रीजन वॉज द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड सेवरल न्यू नेशंस वर क्रिएटेड। ये सबसे मेन रीज़न था। सोवियत यूनियन जो बड़ा सा एरिया था वो टूट गया है अलग अलग देशों में, और उसमें से सबसे बड़ा एरिया जो था वो था रशिया का। तो ये सारे मेन रीज़न थे। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। अब कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ? द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, which till then had been a superpower. As a result, major changes took place in the world politics. A conducive atmosphere prevailed for the growth in trade and economics. अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर। जैसा कि हमने देखा कि कोल्ड वॉर खत्म होने पे सोवियत यूनियन हार गया लास्ट में, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो गया, बहुत सारे अलग टुकड़ों में बढ़ गया, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा था। तो इसके बाद तो पहला चीज़ तो ये हुआ कि दुनिया में अब सिर्फ एक ही बड़ा सुपर पावर रह गया है, तो इसलिए अभी हम लोग वर्ल्ड को यूनिपोलर बोल सकते हैं। बायपोलर मतलब जब दो बड़े पावर्स थे। अभी वापस से सिचुएशन ऐसा हो गया कि अमेरिका के पास सारी पावर है, जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। A conducive atmosphere prevailed to the growth in trade and economic relations between and among nations. Capital, labor market and information circulated throughout the world. Ideas spread freely as well. अब क्योंकि अमेरिका ही एक सुपर पावर है तो उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करना चालू हो गई सारे वर्ल्ड में। लेबर, मार्केट और इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों का लेन देन चालू हो गया। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ एक दूसरे से ट्रेड कर रही है। कोई भी कंट्रीज़ अपने मार्केट दूसरे कंट्रीज़ में सेट कर सकती है, वहाँ से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर सकती है। मतलब कोई किसी के ऊपर भी ऐसा बाउंड्रीज नहीं था जैसे पहले होता था ना कि पावरफुल नेशन ही रूल करेंगे, वो सारी चीज़ें हट गई थी। As all nations of the world decided to give priority to trade relations, and the idea of giving aid to other nations fell behind. Instead, efforts began to be made
टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक रिलेशंस। जैसा पहले होता था कि जो दूसरे कंट्रीज होते थे वो आपस में मतलब दोस्त होते थे या एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो सारी चीज़ें चेंज होने लग गई। जो एनिमी नेशन थे, एक दूसरे के जो दुश्मन थे, अब वो टर्न हो गए हैं राइवल में, यानी कंपटीशन की भावना अब आ गई है। अब वो लोग को एक दूसरे को मारना नहीं है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना है। वो कैसे होगा? जब हम लोग अपनी कंट्रीज़ को ज़्यादा डेवलप करेंगे, जैसे से अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो दूसरे कंट्रीज़ को नीचा दिखा सकते हैं। लास्ट वन वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इंक्रीज। ये पार्ट हम लोगों ने शायद थोड़ा स्किप कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिसे लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा इफेक्ट देखने को मिला, मतलब इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया था ताकि ये सारी चीज़ें वापस से ना हो। बट तो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो लोग वापस से ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का मेन काम क्या था? सेम वही जो लीग ऑफ नेशंस का काम था, कि वापस से वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है, जितने भी डिस्प्यूट्स है उसको पीसफुली सॉल्व करना है। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है और कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया है, तो उससे यूनाइटेड नेशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब यूनाइटेड नेशन को ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें वापस से ऐसा ना हो। देन दुनिया ने मतलब दूसरी दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चालू किया। वो लोग का जो पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया है, वो बदल चुका है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब मेन कॉन्सेप्ट ये था कि मतलब हमने अपने कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है वो सब तो सॉर्ट आउट कर लिया, अब हमें ये सारी बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है कि इसको हम लोग किस तरीके से सही कर सकते हैं। Let us take a quick overview of the chapter. As we started with chapter, we studied about interdependence. कि interdependence क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, कैसे एक दूसरे कंट्रीज़ को बाकी सारे कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल इट इज़, वी ऑल नीड समवन एल्स। ओके, तो अपने मार्केट सेट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमें सारे कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दैट थिंग वॉज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। इसके बाद देन वी लर्न समथिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे कि इंटरडिपेंडेंस के बारे में जब उन्होंने पढ़ा, फॉरेन रिलेशन के बारे में, तो हमें ये पता चला कि जो आज की वर्ल्ड हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस है और वो ये सारे चेंजेस लिंक्ड है किससे? पुराने हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के जो दो बड़े इवेंट थे वो थे वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ 1918 में। And the second world war, the last one, which started in 1939 and it ended in 1945 with the surrender of Japan. जब एट लास्ट अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब फेंके, उसके बाद जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब जाके ख़त्म हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो छोटे मोटे कंट्रीज़ थे जो किसके गुलाम थे, वो लोग इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए। एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ही बड़े कंट्रीज़ बचे थे, जो थे अमेरिका और सोवियत यूनियन। ये दो कंट्रीज़ ऐसे थे जिनके इकोनॉमी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था और ये लोग अभी भी डेवलप्ड, मतलब पैसे वगैरह थे उनके पास। तो ये लोग दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी आर्मी को और बड़ा कर रहे थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। अमेरिका का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही वॉर्सो पैक्ट जो था वो सोवियत यूनियन का मिलिट्री था। तो इस पीरियड को हम लोग ने क्लासीफाई किया था कोल्ड वॉर के रूप में, इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। यानी एक्चुअली में कोई वॉर नहीं हुई थी, बट सिचुएशन ऐसा था कि ये लोग कभी भी लड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स or queries regarding this lecture, please contact us on 9619768527. The doubts will be solved individually by our online system. Thank you for watching this video. Do not forget to like this video. Stay home, stay safe.